ہجرت سے پہلے تو اللہ کہتا تھا یا ایھا الناس، جو مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ کیا فرماتا تھا؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے آدم کے بچوں، سب کو اللہ مخاطب فرماتا تھا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، معیت میں، حکم میں ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا ایک معاشرہ اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی۔ اب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اب یا ایھا الناس نہیں ہے، اب کیا ہے؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ وہ تقسیم برادری کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، وہ تقسیم قومیت کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، وہ تقسیم وطنیت کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، وہ تقسیم امارت اور غربت کے طبقوں کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، وہ تقسیم زبان، رنگ اور نسل کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، وہ تقسیم سیاسی مالی مفادات کی بنیاد پہ نہیں ہوئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم کر دیے اللہ نے، ایک یا ایھا الناس، ایک یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ تقسیم اللہ کی توحید اور اس کے نبی کی رسالت کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی قریش ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، باپ ایمان لایا ہے، بیٹا ایمان نہیں لایا، باپ اور بیٹا الگ الگ ہو گئے۔ بیٹا ایمان لایا ہے اور باپ ایمان نہیں لایا تو بیٹا اور باپ الگ الگ ہو گئے۔ بیوی ایمان لائی ہے، شوہر ایمان نہیں لایا تو بیوی الگ ہو گئی ہے اور شوہر الگ ہو گیا۔ ایک ہی بستی ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک طرح کی بود و باش ہے، ایک طرح کی طرز معاشرت ہے، ایک طرح کا رہن سہن ہے۔ ایمان کی بنیاد پر دو قومیں نئی بن گئی ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی ہے، دوسرا اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالف پارٹی۔ اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی اب مدینے میں جمع ہوتی ہے۔ تو اب اللہ پہ در پہ سورہ بقرہ نازل کرتا ہے، پہ در پہ صورتیں نازل ہونی شروع ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ جو مجھ پر ایمان لائے ہو، جو میرے نبی پر ایمان لائے ہو، جو میرے دین پر ایمان لائے ہو، جنہوں نے میری جنت کے طلب میں اس توحید و رسالت کا پرچم تھاما ہے، اب تم نے یہ بھی کرنا ہے، تم نے یہ بھی کرنا ہے، تم نے یہ بھی کرنا ہے۔ اب تم عام انسان نہیں ہو۔ بات سمجھیے گا اس کو؟ اس شریعت کی جب نزول شروع ہوئے نا تو اس میں پھر یہ دو تین پچھلے رکوع ہیں جہاں سے نزول شریعت کا شروع ہوا، یہاں سورہ بقرہ میں، تو اس پہ پھر احکامات 1 2 3 4 5 عبادت کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، گھر کی آئلی زندگی کے حوالے سے، مسلم معاشرے کے حوالے سے اور سیاسی حوالے سے، اور سیاسی حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے احکامات دینے شروع کر دیے کہ مسلمانوں اب تمہیں یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں پھر یہ روزے کی فرضیت بھی آ گئی۔ تو اس پہ ذہن میں رکھیے کہ جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو میرے اور آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ یہ میں وہ فرد مخاطب ہوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آیا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کہیں گے میں وہ کروں گا۔ یہ بات سمجھیے گا، ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایک اس کا ظاہری معنی یا ظاہری اس کی صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھیں؟ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کہنے کی؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اے اللہ جو تو کہے گا میں وہ کروں گا، جو تیرا نبی کہے گا میں وہ کروں گا۔ اس کی حقیقت یہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کا سٹیزن ہوں، پاکستان کا میرے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، شہری ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو پاکستان کا آئین کہے گا میں وہ کروں گا۔ آپ امریکن نیشنلٹی لیتی ہیں، گرین کارڈ لیتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو امریکہ کی حکومت اور ریاست کہے گی میں اس کا وفادار رہوں گا۔ تو میں کیا نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ایمان کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کہیں گے وہ میں کروں گا۔
शबारा यहाँ तो मैं क्या नुक्ता समझाना चाह रहा हूँ, ईमान का क्या मतलब है कि जो अल्लाह और उसके रसूल कहेंगे वो मैं करूँगा। इनको अब मुखातब किया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ वो लोगों जो अल्लाह और उसके रसूल की फॉलो करने ने अहद कर लिया है, तुम पर रोज़े लिख दिए गए हैं। लिख दिए गए से क्या मुराद है? तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उसी तरह अल्लाह ने फ़र्ज किए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पे अल्लाह ने फ़र्ज किए थे। ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, इसका मतलब सारी उम्मतों में किसी न किसी तौर पे रोज़े रखे जाते थे। लअल्लकुम तत्तकून, आयत का खात्मा किस पे होता है? लअल्लकुम, लअल्लकुम बोले लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा पैदा हो, ताकि तुम में तकवा पैदा हो, शायद कि तुम में तकवा पैदा हो, ये भी इसका तर्जुमा है। ताकि भी कर लेते हैं, ये भी उम्मीद है कि इससे तुम में तकवा पैदा होगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, शायद कि इसके नतीजे में उम्मीद है कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। अब सुनिएगा गौर से, अब रोजे फर्ज की जिस आयत में किए गए, उसी आयत में ये बता दिया गया कि रोजे क्यों फर्ज किए गए। इल्लत बता दी ना अल्लाह ने कि अल्लाह ने रोजा क्यों फर्ज किया, बता दिया ना, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। यहाँ दो चीजें जाननी बड़ी अहम है। एक ये है कि रोजे के नतीजे में तकवा कैसे पैदा होता है, और दूसरी बात ये है कि अगर रोजे के नतीजे में तकवा ना पैदा हो, रोजे के नतीजे में अगर तकवा ना पैदा हो तो उस रोजे की क्या हैसियत है। जब अल्लाह ने कहा ताकि तुम्हें तकवा पैदा हो, तो इसका मतलब अल्लाह ने मकसद बता दिया रोजे का। बड़ी सिंपल सी बात है ना। ये मैंने ऐनक लगाई हुई है, मेरी दूर की नजर कमजोर है, अगर ऐनक लगाने के बावजूद मुझे दूर नजर नहीं आता तो ऐनक लगाने का मकसद पूरा होता है कि नहीं होता? नहीं होता ना। तो ऐनक लगाऊं या ना लगाऊं बराबर है। तो रोजा बज़ाहिर तो हमने सहरी खाते हैं, इफ्तारी करते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, तिलावत करते हैं, लेकिन अगर इस तमाम के बावजूद तकवा पैदा ना हो तो क्या इनका फायदा होगा? बड़ी बात है ना यार, नहीं होगा ना। अल्लाह हमें ऐसे रोज़ों से महफूज रखे जिनके नतीजे में हमारे अंदर तकवा पैदा ना हो। एक बात तो ये आमीन कहते हैं, अल्लाह हमें ऐसे रोज़े नसीब करे जिसके नतीजे में हमारे अंदर तकवा पैदा हो और हमारी दुनिया बदल जाए। अल्लाह हमें ऐसे रोज़े नसीब करे जिसके नतीजे में हमारे अंदर तकवा पैदा हो और हमारी दुनिया बदल जाए। और बात ध्यान में रखें, जो तकवा है ना, तकवा किसी हुलिये का नाम नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हदीस में आता है कि अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। तकवा यहाँ दिल में होता है। तकवा कहाँ होता है? दिल में होता है। और जब दिल बदलता है तो क्या बदलता है? जब दिल बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। फकत रमजान का महीना नहीं बदलता। जब दिल बदलता है तो सुबह शाम बदल जाती है, रात और दिन बदल जाती हैं, जिंदगी का धारा बदल जाता है, जिंदगी को देखने की नजर बदल जाती है, जिंदगी के मकासद बदल जाते हैं, जिंदगी का नस्बुल ऐन बदल जाता है, दुनिया को देखने का ज़ाविया नजर बदल जाता है। जब दिल बदलता है तो इंसान बदल जाता है। दिल बदलने से पहले इंसान की दुनिया कोई और होती है, और दिल बदलने के बाद इंसान की जिंदगी कोई और होती है। वो एक तरह की जिंदगी नहीं रहती। तकवा कैसे पैदा होता है? कहा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे। पर सियाम किसको कहते हैं? सियाम कहते हैं अरबी में रुक जाना। मैं तकरीबन हर रमज़ान में ये बात करता हूँ। अमीन हसन इस्लाकी साहब ने अपनी तफसीर तदब्बुर कुरान में इसको तफसील से रकम किया है। वो कहते हैं कि अरबों में एक आदत थी, वो जंगजू थे, लूट मार करते थे, कत्लो गारत गरी करते थे, दूसरे कबीलों पे शब खून मारते थे, और उनको इस काम के लिए फुर्तीले, एक्टिव और तेज घोड़े चाहिए होते थे। वो उन घोड़ों को रोजा रखवाते थे, और उस घोड़े को साइम कहते थे जो रोजा रखता था। उसके लिए सियाम और सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। वो करते क्या थे कि घोड़ों को जब धूप तेज होती थी ना, चाश का तकरीबन वक्त होता है इशराक के बाद का, सूरज तेज होना शुरू होता है, तो वो घोड़ों को तपते हुए सहरा में ले जाते थे और धूप की तरफ उनका मुंह करके उनको बांध देते थे,
मुखालिफ सम से लू के थपेड़े आते थे जो घोड़े के चेहरे पे पड़ते थे, तो घोड़े को सारा दिन भूखा और प्यासा रखते थे। और इस तरह मुसलसल घोड़े को कई हफ्ते ये मशक कराते थे मुख्तलिफ औकात में, ताकि घोड़ा देर तक जंग के मैदान में भूखा प्यासा लड़ने के काबिल हो सके। बस इसको कहते थे सोम, और घोड़े को कहते थे साइम। इस दौरान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई और अल्लाह ने ये रोजे के ये अहकामात नाज़िल किए, तो कहा पहले तुम अपने घोड़ों को रोजा रखवाते थे, अब अल्लाह तुम्हें रोजा रखवाएगा। तो लाजिम कर दिया कि तुमने अल्लाह की हलाल चीजों से इन औकात में रुक जाना है। सियाम का मतलब रुक जाना। तो क्या कहा? खाना पीना हलाल है, मेहनत का है, तय्यब है, पाक है। कहा इन औकात में नहीं खाना, इन औकात में नहीं पीना, इन औकात में बीवी के पास भी नहीं जा सकते। हलाल है, किसने रोका? अल्लाह ने। इससे अल्लाह ने ये हमारे जहन की तरबियत की कि हलाल वो है जिसको अल्लाह हलाल कहे, और हराम वो है जिसको अल्लाह हराम कराए। हलाल को 12 घंटे के लिए हराम कर दिया ना, तो हलाल और हराम करार देने की पावर और इख्तियार किसका है? अल्लाह का। तो जब हम अल्लाह की इताअत में रोजाना 12-14 घंटे हमारी ये प्रैक्टिस होती है, और इसके साथ फिर हमें कहा जाता है कि गाली नहीं देनी, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, हराम नहीं खाना, ये भी इसी में कहा है। इसी रुकू के आखिर में हराम खाया रोजा गया, धोखा दिया रोजा गया। हदीस में आता है जिसने झूठ बोला और झूठ पर अमल किया उसका रोजा नहीं है। जिसने अपना एहतसाब नहीं किया, अपना जायजा नहीं लिया, अपने ईमान को जिंदा नहीं किया, अपने ईमान की तजदीद नहीं की, वो रात कुरान में खड़ा रहा, अल्लाह के दरबार में कुरान पढ़ता, उसका कुरान पढ़ना और खड़ा होना कबूल नहीं है। हदीस में है, मैं बात अपनी नहीं कर रहा। तो तरबियत की कि भाई जिससे अल्लाह ने रोका है उससे रुकना है, ईमान का ये मतलब है। जो करने को कहा है वो करना है, ईमान का ये मतलब है। अब रमजान चला गया, ये प्रैक्टिस हुई। अब रमजान चला गया, अब चांद तुलू होता है, ईद का चांद नजर आता है। अब बच्चे बाजार जाते हैं, खवातीन बाजार जाती हैं, अब अगले शॉपिंग होती है, फिर ईद का दिन आता है, फिर पूरा 11 महीने गुजरते हैं। अब अगर वो अपने रुक जाने में सच्चा था, अपने ईमान में सच्चा था कि जो अल्लाह और उसका रसूल कहेगा करूंगा, तो 11 महीने उसका रोजा कायम रहेगा। जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हलाल चीजों से रुक गया था, वो 11 महीने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के तहत हराम चीजों से भी रुक जाएगा। अब जब ये उम्मत ऐसे रोजा रखेगी तो ये करप्शन से पाक हो जाएगी। फिर आप देखेंगे, आपने वापडा में जाना है, कोई रिश्वत लेने वाला नहीं है। आपने गैस के दफ्तर जाना है, कोई रिश्वत लेने वाला नहीं है। आपको पुलिस से वास्ता पड़ता है, आप देखते हैं सारी पुलिस रोजे वाली है, इनके दिल में तकवा है, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात पे लब्बैक कहा है। आपकी लीडरशिप है, आपके सियासतदान है, आपकी मजहबी लीडरशिप है, आपके कारीगर हैं, आपके दुकानदार हैं, ताजिर हैं, मुलाजिम हैं। आप देखते हैं 21वीं सदी के इस पाकिस्तानी 22 करोड़ मुसलमानों ने रोजा रखा। रोजे ने इनको तकवा दिया, तकवे ने इनका दिल बदला, इनके दिल ने इनकी जिंदगी बदली, इनका किरदार बदला, इनका अखलाक बदला। करप्शन का खात्मा हुआ, झूठ का खात्मा हुआ, धोखे का खात्मा हुआ, फरेब का खात्मा हुआ, लड़ाई झगड़ों का खात्मा हुआ, और आपने देखा कि पुरअमन मुआशरा बना। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, आप देखते हैं कि रमजान के बाद भी वही रिश्वत का बाजार गर्म है, वही करप्शन का बाजार गर्म है, वही झूठ है, वही कत्लो गारत गरी है, वही फुहाशी है, वही उरियानी है, वही जिना है, वही शराब है, वही आवारागर्दी है, वही अल्लाह और उसके रसूल की दीन की तालीमात का मजाक है, वही सूदी मोइशत है, वही गैरों की नक्काली है, वही IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी है। तो इसका मतलब ये है कि रोजा रखने में ये उम्मत ने झूठ बोला। अल्लाह मुझे और आपको सच्चे ईमान के साथ ऐसा रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, जिस रोजे के नतीजे में इस दुनिया में भी अल्लाह हमें इज्जत दे और इस्लाम की नेमत दे, और आखिरत में भी हमें अपनी जन्नत से नवाजे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।